everyone, I am Sukhpreet Kaur, Assistant Professor at Axis Institute of Technology and Management. In the last lecture, we discussed about electromechanical meters. So welcome back to discuss today about power theft in electronic meters. Since when we studied about the power theft in electromechanical meters, we came to know that it was a combination of two technologies, electro and mechanical. So in that case, what we found was, due to the involvement of the mechanical part, we were able to resist the movement of the disc, which helped the theft doing people to allow them to reduce the number of units they consume, and again in turn reducing the amount of utility bill. So today we will study about power theft in electronic meters, how these meters have helped to overcome the problem which was faced in electromechanical meters. Basically, electronic meters does not use the basic of mechanical part, or either if they use it with some technological renovations, with new inventions which can be controlled in the either way. So moving again, what are the methods of power theft in electromechanical meters? The first one is power theft by the means of electrostatic discharge. In this, electrostatic discharge play a very important role, which we will be discussing later on. Power theft by tampering printed circuit boards, power theft by tampering frequency circuits, and power theft by tampering the ongoing display of the energy meter. Basically, these are the four major methods that are opted nowadays to do the power theft. Moving to the first method, that is power theft by the means of electrostatic discharge. So when we talk about any circuit, then we come to know that voltage and frequency play a very important role in that. Usually here a very high voltage and frequency is applied on the meter and creating the electromagnetic field. यूजुअली इसमें होता क्या है कि जब हम कोई भी एक हाई वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है वो स्लो डाउन हो जाता है या फिर डिसकंटिन्यू हो जाता है, और इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो इसका रिकॉर्डिंग प्रोसेस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि बहुत इजी हो जाता है कि रिकॉर्डिंग प्रोसेस डिस्ट्रॉय हो गया, हम उतने ड्यूरेशन के लिए एनर्जी को विदाउट एनी टेंशन यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये कंडीशन यूजुअली तब आती है जब हम बहुत ही हाई वोल्टेज फेड करते हैं इन द neutral of the meter. As it is written, this condition occurs if high voltage is fed through the neutral of the meter. What happens when a high voltage is fed to the neutral of the meter? Usually आप लोगों ने सुना होगा EEPROM के बारे में, which is electrically erasable प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यूजुअली क्या होता है, जब हम एक हाई वोल्टेज इंसर्ट करते हैं तो ये EEPROM जो होता है वो री इनिशियलाइज हो जाता है। सपोज EEPROM कोई भी एक्स रेटिंग पे रिकॉर्डिंग कर रहा है तो उस केस में ये री इनिशियलाइज हो जाएगा। इट मीन्स दैट इट विल स्टार्ट अगेन फ्रॉम ज़ीरो। सो ये एक मेथड हो गया कि हमने EEPROM को री इनिशियलाइज कर दिया, वो वापस से अपनी मेमोरी में ज़ीरो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा। जब ज़ीरो से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो क्या होगा, इस केस में जो काउंटर होगा, जो कि काउंटिंग्स कर रहा होगा, जो कि रीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहा होगा, उसकी मेमोरी ऑलरेडी इरेज हो जाएगी, यानी कि री इनिशियलाइज हो जाएगी और वो वापस से ज़ीरो से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगी। एक बार जब वो ज़ीरो से वापस से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगी तो जो डिजिटल वे में हमें एक रीडिंग डिस्प्ले होगी वो एक फ्रेश रीडिंग होगी। तो यानी कि उससे ये होगा कि जो पुराना डेटा ऑलरेडी होगा, जो हमने पुराना लोड कंज्यूम किया होगा, उसका डेटा
वहाँ पे रहेगा ही नहीं। ऐसा भी होता है कि जब बहुत ही वर्स्ट केसेस होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, DC इंजेक्ट कर देते हैं इन द न्यूट्रल ऑफ द वायर, एंड इंजेक्टिंग द DC टू द न्यूट्रल ऑफ द वायर में डिस्ट्रॉय द मेजरिंग सिस्टम, यानी कि जो मेजरमेंट वाला सिस्टम होगा वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वापस से जो री इनिशियलाइज हो रहा था वो होने की बजाय रीडिंग सिस्टम पूरा शट डाउन ही हो गया, वो रिकॉर्डिंग करना ही बंद कर दिया और मीटर अपने एक्चुअल पोजीशन पे वर्क कर रहा है, यानी कि वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस को छोड़ के बाकी सारी वर्किंग करेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट हाउ वी कैन कंट्रोल द ESD अटैक, यानी कि अब जब हमने इसमें इतनी एक हाई DC हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से इस मेथड को रिड्यूस कर सकते हैं, इस मेथड को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ अ करप्ट रीडिंग अकर्स, यानी कि अगर एक ऐसी रीडिंग हमारे मीटर में शो होती है तो हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि क्या ये रीडिंग एग्जैक्टली पॉसिबल है भी या नहीं। कहने का मतलब है कि अगर सपोज करिए कि हमने मीटर को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, या फिर हमने उसका जो रीडिंग पार्ट होगा, जो काउंटर पार्ट होगा, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया या री इनिशियलाइज कर दिया, तो हमें यानी कि जो अथॉरिटीज़ होंगी उन्हें ये ऑलरेडी नोन होगा कि हम इतना कंजम्पशन 1 मंथ में कर रहे हैं। इतना कंजम्पशन करने के बाद अगर फ्रीक्वेंटली हमारी रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा कम आती हैं तो हमारे पास यानी कि अथॉरिटीज़ के पास एक प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हम चेक कर सकें कि क्या ये रीडिंग पॉसिबल है या नहीं। इट इज़ रिटन, इफ अ करप्ट रीडिंग अकर्स द प्रोसेसर शुड कंपेयर इट विद दैट ऑफ द प्रीवियस रीडिंग एज अ क्रॉस चेक। नाउ द सेकेंड इज बिफोर स्टोरिंग it should check that such a reading is possible or not। अब अगर हमने सपोज करिए हमारी कोई भी एक X रीडिंग है, इंस्टेंटेनियसली अगर ये री इनिशियलाइज हो जाए तो प्रोसेसर को पहले ही चेक कर लेना चाहिए। प्रोसेसर इस तरीके से अलाइन होना चाहिए कि वो पहले ही ये चीज़ चेक कर ले कि क्या ये रीडिंग पॉसिबल है उस इंस्टेंस पे या नहीं, और अगर ये री इनिशियलाइज हुआ देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड री इनिशियलाइजेशन। यूजुअली जब हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब थीव्स पावर थेफ्ट के लिए यहाँ पे हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, दैट इज़ अराउंड 50 to 60 kV, तो प्रोसेसर को इतनी हाई वैल्यूज़ उसमें इंजेक्ट करने के लिए अवॉइडेबल नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसर इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि इतनी हाई वैल्यूज़ को वो ऑटोमेटिकली इग्नोर कर दे। सो दिस इज़ व्हाट वी कम फॉर द technical part. Now even in this case some gauge wires are used. These gauge wires usually dissipate ESD. Like it is written, if a proper gauge wire are used then ESD will get dissipated in copper wire, and because of its impedance only a part of it will be passed to the energy meter at a withstandable level। अगर सपोज करिए एक बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट हम उसमें इंजेक्ट भी करते हैं, तो अगर हम गॉज वायर्स का यूज़ करते हैं वो यूजुअली इतनी हाई वैल्यूज़ को डिसिपेट करवा देती हैं थ्रू द कॉपर वायर, और उतना ही करंट एनर्जी मीटर में जाता है जितने की उसको रिक्वायरमेंट होती है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पावर थेफ्ट बाय टैम्परिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। आप सबने प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स के बारे में सुना होगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स एक वे होते हैं, लाइक इन दिस पिक्चर यू कैन सी, यहाँ पे बहुत फाइन पाथ बने होते हैं जिसमें कि हम लोग सर्किट को डिज़ाइन करते हैं, उसमें सोल्डरिंग का प्रोसेस करते हैं, और वो एक कॉम्पैक्ट वे में किसी भी किसी भी इक्विपमेंट में वो फिट हो जाता है। जैसे कि अगर हम लोग बहुत ही बेसिक एग्जांपल देखें, हम लोग जो अपने घरों में रिमोट्स यूज़ करते हैं उसके अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट होती है, उसके ऊपर सोल्डरिंग्स करी गई होती हैं जिसमें हम बटन्स को प्रेस करते हैं तो वो वर्क करता है। यूजुअली इसमें क्या होता है कि जब हम लोग पीसीबी की डिज़ाइनिंग करते हैं तो पीसीबी एक इलेक्ट्रिकल सपोर्ट तो प्रोवाइड करता ही करता है, एट द सेम टाइम एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी परपेटरेटर एज इन वो इंसान जो कि किसी भी पावर थेफ्ट में इन्वॉल्व है, अगर वो किसी भी तरीके से मीटर को टैम्पर करता है
और टैम्परिंग करने के टाइम अगर वो सक्सेसफुल है सिक्योरिटी सील्स को ओपन करने के लिए विद XYZ रीज़न, तो उस केस में अगर वो PCB को टैम्पर करता है देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि उसने PCB को टैम्पर किया है। लेकिन तो भी कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जो कि प्रूव कर सकते हैं कि PCB को टैम्पर किया गया है। PCB is used as a mechanical support, जैसे कि मैंने आपको बताया, to various electronic components in using pathways। अब थिकनेस जो होती है PCB की वो वेरी करती है कि हम किस तरीके का सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। PCBs are available with the ounces of copper relating to actual weight of the material per square meter area। एक कुछ इंटीमेशंस होते हैं, कुछ रीडिंग्स होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें PCB बोर्ड्स मिलते हैं। 1 ounce ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 0.014 इंचेस विच इज इक्वल टू 0.0356 mm। अब यूजुअली यहाँ पे क्या किया जाता है कि ये अटैक सबसे पहला जो इसका एविडेंस होगा वो होगा सिक्योरिटी सील्स, यानी कि अगर सिक्योरिटी सील्स को टैम्पर किया तभी हम PCB तक पहुंच पाएंगे। PCB इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल सर्किटरी। अगर हमें PCB तक पहुंचना है उससे पहले हमें सिक्योरिटी सील्स को टैम्पर करना होगा। इफ़ वी आर सक्सेसफुल, सपोज करिए here we have some of the tools in which or by which we are able to easily remove the security seals. So in that case अगर हमें ये अटैक करना है तो हमें PCB तक पहुंचना होगा। तो उस केस में जब हम सिक्योरिटी सील्स को टैम्पर कर देंगे, अब ये किस केस में होता है? ऑन साइट कैलिब्रेशन ऑफ द मीटर कैन बी रिवील्ड notable variation in accuracy also. The actual loading of the meter showed no consumption registering in one phase. Hence all the attention is concentrated to that area. अब जब एक PCB बोर्ड डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें कुछ अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे जब हम लोग एक सर्किट बनाते हैं तो सपोज हमें पता है कि जो ये वाला पार्ट है ये एक मैक्सिमम लोड कंज्यूम कर रहा है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बहुत ही माइक्रो टूल्स यूज़ किए जाते हैं जिससे कि इस वाले पार्ट को कट कर दिया जाता है, यानी कि जो करंट होगा वो इस पार्ट में फ्लो ही नहीं करेगा और इस पार्ट में ना फ्लो करके वो बाकी के सर्किट को कंप्लीट करेगा। अब अगर ऐसा हो रहा है यानी कि हम लोग ऐसा कोई विजिबल फॉल्ट नहीं कर रहे हैं, अगर हम सिक्योरिटी सील्स के थ्रू इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to check such kind of fault with the naked eyes. The consumer here cut off the track of the PCB meticulously as in very finely without letting anybody know at vulnerable locations. This is done with a very sharp micro tools. As I told, इनको बहुत ही sharp micro tools से use किया जाता है ताकि it is non identifiable as the cut point is less than the millimeter size. Even when we design PCB, we use the soldering process. उसमें soldering इतनी fine होती है कि उसमें बहुत ही छोटे soldering points हमें locate करने पड़ते हैं. The attack is not visible with the naked eyes. यानी कि आप PCB को देख करके तो बता ही नहीं सकते कि इसमें कोई fault हुआ है या नहीं. Another physical indication of the tampering. Now what is the indication that we can get to know that the PCB is tampered? Because we have already discussed that this kind of fault is not visible with the naked eyes. अब usually जब perpetrators इस तरीके का fault करते हैं they are in very hurry of doing such kind of fault. Usually the way the authority people do the soldering of this PCB is quite different from the pattern which is opted by the perpetrators. So one and the only one point by which the PCB can be
notified that any power theft is taken place in this PCB is by the help of knowing the pattern of the soldering. At site, soldering cannot be done as that of the factory soldering. Since tampering is done in the limited time, perpetrators need not care about appearance. As a result, difference in pattern can be easily notified, and this difference in pattern will help the authority people know that there is a theft in the PCB, there is some malfunctioning in the PCB, the seal is opened and the PCB is altered. It means the electronic meter is tampered. Moving to the next, the power theft by tampering the frequency circuit. What do you mean by the frequency in a circuit? Frequency means कि जितने number of oscillations होंगे उसके accordingly frequency vary करेगी. अगर यानी कि जो frequency होगी वो directly proportional होगी to the oscillations. Now let it be any instrument for any frequency other than the designed value, the accuracy of the measurement gets affected. यूजुअली इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी को ऑल्टर करते हैं. अगर हम सक्सेसफुल हैं फ्रीक्वेंसी ऑल्टर करने में, इट मीन्स दैट वी आर एबल टू डू द थेफ्ट इन दिस मीटर. यूजुअली हम क्या करते हैं, हम उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब कर देते हैं. कोई भी एक सर्किट होगा वो अलाइंड होता है एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने के लिए. जब हम फ्रीक्वेंसी सर्किट को ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने अपकमिंग प्रोसेसेस को ऑलरेडी स्टॉप कर देता है. इन दिस मेथड द ऑसिलेटर इज डिस्टर्ब्ड विच लीड्स टू टेम्परिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी सर्किट. जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ऑसिलेशंस को रिड्यूस करेंगे, हम ऑसिलेटर सर्किट को अफेक्ट करेंगे. अगर हम ऑसिलेशंस को रिड्यूस कंट्रोल कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी. द ऑसिलेटर ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर इज इंस्टॉल्ड ऑन द पीसीबी इनसाइड द मीटर. अब इसमें देखिए एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है. अगर हमने ऑसिलेटर को डिस्टर्ब किया, ऑसिलेटर किस पे इंस्टॉल्ड है, पीसीबी पे, ठीक है. अब अगर ये ऑसिलेटर पीसीबी पे इंस्टॉल्ड है, इट मीन्स दैट इसके जो आगे के प्रोसेसेस होंगे, मीन्स वेरियस सिग्नल्स स्विचिंग द इनपुट्स टू द प्रॉपर एटेन्यूएटर, रीडिंग द एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड ड्राइविंग द एलसीडी डिस्प्ले. ये सारे प्रोसेस आफ्टर द प्रोसेस विच इज कवर्ड बाय पीसीबी, ये सारे प्रोसेसेस तब होते हैं एक बार जब पीसीबी के थ्रू करंट फ्लो कर जाता है. उसके बाद सिग्नल को टेस्ट किया जाता है. अगर उसे एटीन्यूएट करना होता है तो उसका एटीन्यूएशन होता है. एटीन्यूएशन होने के बाद उसको रिकॉर्ड किया जाता है. एक बार वो रिकॉर्ड हो जाता है तो उसे डिस्प्ले कर दिया जाता है. यानी कि अगर हमने इस प्रोसेस को ही टैम्पर कर दिया तो आगे आने वाले सारे प्रोसेसेस ऑटोमेटिकली टैम्पर हो जाएंगे. तो यहाँ पे अगर हमने ऑसिलेशंस को कंट्रोल किया है, यानी कि हमने पूरे फ्रीक्वेंसी सर्किट को टैम्पर कर दिया है. यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F ऑसिलेशंस अपॉन 3.75795 मेगाहर्ट्ज. यूजुअली ये एक एक्सप्रेशन है जो कि ये प्रूव कर रहा है कि अगर हम ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, इट मीन्स दैट overall frequency of the meter is disturbed. Therefore, any change in the oscillating frequency will disturb the entire circuit of the energy meter. Moving to the next, power theft by tampering display circuit of the energy meter. Now what do you mean by display circuit? डिस्प्ले सर्किट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हम लोग बहुत इजीली देख पाते हैं. यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो एनर्जी मीटर्स होते हैं, जब आप लोग अपने एनर्जी मीटर देखते हो तो आपको यहाँ पे कुछ लोड दिखाई देता है, फिर यहाँ पे आपकी रीडिंग चल रही होती है, यानी कि आपने कितना कंजम्पशन कर लिया है. ठीक है. अब अगर हम इस डिस्प्ले सर्किट को
टैम्पर करते हैं तब हम किस तरीके से पावर थेफ्ट कर रहे हैं। यूजुअली जो एनर्जी मीटर्स होते हैं, यानी कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स की बात करें, इसमें हम लोग स्पेशली डिज़ाइन मोटर्स का यानी कि स्टेपर मोटर्स का यूज़ करते हैं। स्टेपर मोटर्स बहुत ही सिंपल मोटर्स होती हैं जिनमें हम यूजुअली इलेक्ट्रिकल पल्सेस देते हैं, और यानी कि अगर हम उसमें पल्सेस दे रहे हैं तो हमें एक इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिल रहा है। यूजुअली स्टेपर मोटर्स जो होती हैं वो स्टेप बाय स्टेप रोटेट करती हैं, यानी कि जैसे ही हम पल्सेस देना स्टॉप कर देंगे उसी टाइम पे इलेक्ट्रिकली वो वर्क करना बंद कर देगी। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस तरीके की मोटर्स में कोई ब्रेकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिकॉज ब्रेकिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं है बिकॉज द टाइम वी स्टॉप प्रोवाइडिंग द पल्सेस टू द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली स्टॉप। सो काउंटर इज द पार्ट। अब देखिए यहाँ पे काउंटर होता है जो इन पल्सेस को काउंट करता है। काउंटर इज द पार्ट ऑफ द डिस्प्ले सर्किट ऑफ द एनर्जी मीटर। Performing power theft on the counters require no technical know-how, as even screwdriver technician can execute this task। अगर हम काउंटर को चेंज करते हैं, अगर हम काउंटर में कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं, then it is a very simple process। एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर टेक्नीशियन भी ऐसा कर सकता है। Electronic meters has stepper motor, as I told you, which is an electromagnetic device which converts digital pulses to the rotational movements। वो क्या कर रहा है, डिजिटल पल्सेस हम दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल मूवमेंट्स। अनलाइक अदर मोटर्स इट कैन नॉट रन फ्रीली, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये ईजिली रन होती रहेंगी। जब तक हम यहाँ पे डिजिटल पल्सेस नहीं देंगे तब तक उसका रोटर मूव नहीं करेगा। इट कैन होल्ड द पोजीशन फर्मली, यानी कि जो हमने उसमें पल्सेस दी हैं, ठीक है, एंड द टाइम वी स्टॉप गिविंग द पल्स the rotor of the motor will stop then and there, so it does not require any braking system. Motor does a particular degree of rotation when it gets the pulse। अब जैसे ही हम पल्स प्रोवाइड करेंगे, सपोज हमने एक पल्स प्रोवाइड करी, वो एक स्टेप का रोटेशन करेगी, फिर हमने नेक्स्ट पल्स प्रोवाइड करी, फिर वो एक नेक्स्ट स्टेप का रोटेशन करेगी, फिर हमने एक पल्स प्रोवाइड करी, फिर वो नेक्स्ट स्टेप मूव करेगी। ऑब्वियसली ऐसे जब हम प्रोवाइड करेंगे तब वो जाकर के एक पूरा रोटेशन कवर करेगी। Since it operates on the input pulses, if the input is controlled, it will lead to the lower rating of the output। Suppose in case हम इस input को कंट्रोल कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा, ये नंबर ऑफ रोटेशंस जो होंगी ये ऑटोमेटिकली रेड्यूस हो जाएंगी। नाउ दिस रोटेशन इज काउंटेड बाय द काउंटर, right? Now if these rotations are less, then automatically counter will lower down this counting. This counter displays the reading on the display circuit, then obviously the user will get to see the lesser reading. Therefore by controlling the digital pulses, the rotation of the stepper motor can be restricted. So basically what we are doing over here is we are restricting the rotation of the stepper motor by controlling the pulses. Since no pulse is obtained, the meter will stand still and it will not record। अगर हमने उसमें pulses ही नहीं दी, उसके आगे का कोई प्रोसेस होगा ही नहीं। Nothing will work on PCB, no analog to digital conversions, no counting and no display। यानी कि अगर पल्सेस नहीं मिली तो उसके आगे का कोई भी प्रोसेस वर्क कर ही नहीं रहा है। सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस मेथड इज क्वाइट सिंपल when the
रिकॉर्डिंग इज़ डन। यूजुअली हम क्या करते हैं, आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स यूज़ किए जा रहे हैं उसमें स्टेपर मोटर्स का यूज़ होता है। अगर हम कभी भी इसमें रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो उस केस में यूजुअली जो परपेटरेटर्स होते हैं वो इन पल्सेस को में कुछ ना कुछ हिंडरेंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से बाकी का प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। इवन इसमें एक और मेथड है जो कि हम कहते हैं लिमिटिंग स्विच। एक जो लिमिटिंग स्विच होता है वो दो मोड्स में वर्क करता है, एक होता है ऑन मोड और एक होता है उसका ऑफ मोड। ऑन मोड एंड ऑफ मोड, व्हाट डज द ऑन मोड मीन्स? ऑन मोड मीन्स व्हेन there is no current flowing in the circuit, and the off mode means when the current is flowing in the circuit. तो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम एक लिमिटिंग स्विच इंसर्ट कर देते हैं और जैसे ही उसको ऑन करेंगे तो मीटर में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। इन द सेम वे एक और मेथड है जो कि ऑप्ट किया जाता है, विच इज़ लिमिटिंग स्विच। इसमें बेसिकली लिमिटिंग स्विच दो मोड्स में वर्क करता है, एक तो होता है इसका ऑन मोड और एक होता है ऑफ मोड। द ऑन मोड बेसिकली लिमिट स्विच क्या करता है, लिमिट स्विच किसी भी मीटर में जाने वाले करंट को लिमिट कर देता है। तो यानी कि जब ये ऑन मोड में होगा उस टाइम पे ये उसमें जाने वाले करंट को लिमिट करेगा, जिससे कि मीटर की रिकॉर्डिंग स्लो डाउन हो जाएगी, मीटर रिकॉर्डिंग प्रोसेस बंद कर देगा, ठीक है। और दूसरा प्रोसेस होता है जब हम इसको ऑफ कर देंगे, यानी कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि यूजुअली आजकल ऑप्ट करते हैं लोग। इट इज़ वेरी इजी कि हम स्विच को ऑन कर दें, स्विच को ऑफ़ कर दें। अगर हम ऑन कर देते हैं तो वो रिकॉर्डिंग प्रोसेस बंद कर रहा है, अगर हम उसे ऑफ़ कर दे रहे हैं तो वो अपने एग्जैक्टली जैसे वो पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था वो वैसे रिकॉर्डिंग कर लेगा। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट how we are able to identify, how the people who are coming for the inspection are able to identify that the power theft is taking place in such kind of energy meter. ये बहुत important है कि हाँ जो inspection के लिए आता है उसको इतनी knowledge हो कि किस किस तरीके से पावर थेफ्ट होता है इन मीटर्स में, so that not only the security seals but also at the same time they are able to find out कि जो अंदर कितनी कितनी टेक्निक्स हैं, किस तरीके से हम स्टेपर मोटर को हैम्पर कर रहे हैं, किस तरीके से हम ESG कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स को टैम्पर कर रहे हैं। अगर ये सारी नॉलेज लोगों के पास नहीं है देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। देन देयर विल बी एवरी नेक्स्ट हाउस जहाँ पे इस तरीके से मीटर्स को टैम्पर किया जाएगा और उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस करके हम अपने यूटिलिटी बिल्स को कंट्रोल करेंगे, एंड ऑब्वियसली दिस विल कंटिन्यू टू लीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर थेफ्ट. So now in order to prevent power theft we have many methods, right? So there is a management which needs to be done. You might have heard about demand side management, the energy audits, how the energy audits are done, how people find out what is the process involved in that. So in the upcoming videos we will be discussing about how the audits are done, what is the role of demand side management in that. So stay tuned for the upcoming videos. Thank you.